At a point in time 2016 we started Iron Man lifestyle. Around that time मैं काफी परेशान हो रहा था क्योंकि the point was I was stuck in a pattern of I would get I was like यार ये लड़की बहुत सही है, I want to talk to her. I'd go talk to her. I was like यार, and then एक महीना we'd have like a relationship, whatever, casual relationship. As soon as it would get serious, I was like नहीं बस हो गया, bye. अच्छा. As soon as it was about to get serious, yeah, she'd ask, so what are we? I'm like यार, I'm not looking to date at all. Okay. तो मेरा clear था मुझे date नहीं करना है, and I would tell her also. And it wasn't because I didn't like the girl. I really liked the girl. She was amazing. She was very thoughtful. She was very helpful. अगर मैं कुछ बोलता था वो help भी करती थी. और अगर मैंने उसको बताया भी होता कि भाई ऐसे issues हैं, तो she would have helped out as well. But मुझे ही नहीं पता था मैं issues बताऊँ कहाँ से. अब I would be like नहीं हो रहा है, and I'd leave क्योंकि enmeshment kick in होता था. And this I figured out later. मुझे लगता था मैं फंस जाऊंगा वहाँ पे. I would feel trapped in that relationship. And I was like नहीं, I can't be in a relationship. Go away, get another girl. As amazing as the first one. एक महीने बाद same चीज, another girl as amazing as the first one. And then I was like यार, and every time I would leave, it'll be very painful because I really like the girl. उसके बाद when she moves on, then abandonment would kick in. Because एक महीना तो छोड़ा नहीं प्लीज चेप मत हो, दूर रहो, तुम कितने चेप हो, ऐसे बोलता था मैं, प्लीज लेट मी बी. एक महीने बाद जब उसने जब वो मूव ऑन कर लिया या जब उसने मैसेज नहीं किया तो मैं कहा यार अरे तो मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ, अब उसको बात नहीं करनी है, अबैंडनमेंट किक इन. तो अब ये पैटर्न 3 महीने यही नॉन सर्विंग पैटर्न हो गया और ये चल रहा है. एंड देन आई एम लाइक यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, हर 3 महीने में परेशान होता हूँ, हर 3 महीने में नई लड़की ठीक है आ रही है. इफ आई वांटेड टू, अगर मुझे एक लड़की पसंद है मैं क्यों जा रहा हूँ उसके पास, क्योंकि मुझे पसंद है. और अगर मुझे छोड़ना है और मुझे दूसरी लड़की चाहिए जो सिमिलर लेवल पे ही है, कुछ ज्यादा कुछ अप डाउन नहीं है वहां पे, तो मैं पहली वाली के साथ ही रह लेता यार. इतना मैं बीच में क्यों परेशान हूँ. एंड उसके साथ कंबाइंड ऑल ऑफ माय कॉलेज खत्म हो गया था, काम उतना अच्छा चल नहीं रहा था. I hadn't started Iron Man lifestyle because बोलना है यार डैड मैं 90% हूँ पूरी लाइफ और मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ एंड मैंने बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स करा है, ऑनर्स करा है मैंने, नर्ड वाली कैटेगरी से मैं आया हूँ, बट अब मैं लड़कों को लड़कियां पढ़ानी सिखाऊंगा. So it's not the thing that anybody would expect, of right? course. So I had another business, wasn't working out as well. Friends had gone away. The girl, जो भी एक दो support system था, parents weren't that support system because वो बचपन से ही नहीं रहा. एक दो दोस्त थे, cousins वगैरह थे और एक दो लड़कियां थी. Everyone is moving away now. I find my entire circle crashing. And I'm like, what the fuck is going on? And that's when I went for therapy. I'm like, यार देखो मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है. This is going on. ये रहा मेरा garbage. ये रहा मेरा garbage. और उस टाइम पे I read a book also. Okay. Amazing, The Truth by Neil Strauss. Okay. So that's all about. और उस टाइम पे उस बंदे की भी जर्नी यही थी. वो भी ऐसे ही गया था. उसकी 2 बुक्स हैं जो मैंने एक ही दिन में पढ़ी थी. मतलब so his first book was The Game, where he's talking about same journey on how to be more confident, how to talk to girls. तो वो पढ़ के आए and उससे मेरा confidence का journey start हुआ कि यार I can go out and talk to girls. The second book of his was The Truth. The Truth में he says now I've gotten all the girls, but अभी भी मेरे relationship में problems आ रहे हैं, मैं cheat कर रहा हूँ लड़कियों पे, मैं commit नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को ये चीजें आ रही हैं, मैं अपनी marriage खराब कर रहा हूँ, whatever. And then he dives into it. और पूरा diving उसका था enmeshment, abandonment, trauma, childhood, chair work or something, going for therapy, going for retreats, all of that. Figured all of the things out about relationships. So it's the truth about relationships and everything. Right. And then he's explored a lot of polyamory and a lot of those things. End में उसका conclusion निकला monogamy है जो बेस्ट है मेरे लिए और पूरा परेशानी होती. बट एनीवे आई रेड दैट, व्हाइल रीडिंग इट मैं रोने लग गया. आई स्टार्टेड क्राइंग, आई कुड रिलेट एवरीथिंग. पूरा अवेयरनेस आ गया, मैं पूरा रो रहा हूँ, कैथारसिस भी हो गया, सब कुछ हो गया. एक दिन में पूरी बुक पढ़ लिया मैंने एंड आई हैड नोट्स एंड देन मैं रो रहा हूँ और मैं आधे घंटा रो रहा हूँ, बुक छोड़ के रो रहा हूँ एंड देन आई एम स्टिल रीडिंग इट एंड एवरीथिंग जस्ट क्लिक्ड कि ये हो रहा है मेरे साथ. तो मैं ये इन्फॉर्मेशन लेके मैं गया, सब हो गया, मैं गया, फिर गया मैं थेरेपिस्ट के पास. देखो ये है, प्लीज करो. और वो कह रहे हैं यार इसका क्या मतलब है, या आपके साथ ये हो रहा है. मैं कहा हाँ ये हो रहा है. कह रहे बहुत कंफ्यूजन है. मैं कहा मुझे भी पता है. तो हम एक चीज से स्टार्ट करते हैं एंड आई वाज लाइक लेट्स जस्ट गेट इनटू माय चाइल्डहुड, टेक करते हैं खत्म उसको. तो बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा था. बट देन व्हेन आई वेंट फॉर रिट्रीट इन चाइल्ड हीलिंग वगैरह देखा मैंने. वो क्योंकि क्लियर दैट वाज वर्किंग ऑन दैट कोर इशू जो चाइल्डहुड था और उसके बाद सारी चीजें मैनिफेस्ट हुई थी जो भी था. एंड देन डिड दैट फॉर लाइक रिट्रीट, मल्टीपल रिट्रीट, 2, 3, 4 1 सेशंस, मोर मेडिटेशन, मोर स्टफ. आई थिंक 3 years ऑफ अ जर्नी एंड देन काफी सही हुआ. और अब मैं पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हूँ. अब जाके फाइनली इतनी बड़ी जर्नी रही है वो. सो
that's been my journey with therapy and the inner work. नहीं, I got your point.